nervous system is the main system in our body who controls over all the systems, isn't it? So you have to know it very well, the anatomy and physiology. Unless and until you know the anatomy and physiology well, you will not proceed on the practical examination. I think that nervous system is not being started either in the anatomy and physiology. Okay. You must know in short that it is a system which will integrate all the functions. Means it will control over the other system to perform their function in coordinately. Okay. The whole body muscle will have some function, and that is under control of the nervous system. The glands which cause the secretion. Each and every day we get the thousands of information, and when this information we get, it will go to the nervous system, analyze, scrutinize, and give the result, that is the response. In a very fraction of a second, the nervous system gives the judgment. Whenever you are in puzzle, a problem is there, you have to solve it. You have to think over that. But for the body function, suppose the respiration rate is normal. To maintain the respiration rate, to maintain the digestion, to maintain the thirst, these are all physiological phenomena. For that, you don't have to think. It is the thinking of the nervous system. If the nervous system is okay, all the systems, all the functions, all the physiological phenomena will perform their own function normally. Today, we will start the practical examination, that is clinical examination of motor function. We have to move it, otherwise we cannot get it. Clinical examination of motor function. Motor means we have in the whole nervous system two functions. One is the sensory, another is the motor. Sensory means sensation. Motor means action of the particular either the muscles or the glands. You remember, motor function means the supply of the motor nerves to the muscles of the body and the glands, which are the muscles means either the skeletal muscle, usually the skeletal muscle. We know that there are three muscles. One is the cardiac muscle. Cardiac muscle is not under control by the nervous system. The smooth muscle. Smooth muscle includes the different organ and the skeletal muscle. Here the motor function, we are going to examine the motor function of the person, whether it is normal or not, relate to the skeletal muscle. The skeletal muscle motor function we have to find out. First we have to know the power of muscle. You know the muscle physiology is that? Not muscle physiology. Who is teaching you? I don't know. So the power of muscle, we have to look over the power of muscle. It is to be observation. Some experiment we will do, and by that we can say whether the power of muscle is normal or not. What is the examination? I want one volunteer to come. Muscles of the chest and muscle of the back. So the upper extremity. Look at me. पैर नीचे करिए, हाथ को ऐसे मोड़िए. So you have to flex. We are doing the flexion. दूसरे हाथ करिए, इसको नीचे करिए, दोबारा करिए, पहले इसको मोड़िए. हाथ को मुट्ठी क्यों कर रहे हैं?
हाथ सीधे रखिए, हाँ नीचे करिए, उस हाथ को करिए, नीचे करिए। सो वी आर परफॉर्मिंग द फ्लेक्शन ऑफ, we are doing the perform the function of elbow, बंद कर दो ना, मिस कर दो ना। We are performing the function of the elbow. Next, you hold the shoulder back. Keep it, do it, keep it. तो हमको what we are doing? We are observing whether the person can do easily or not. The person can flex here and ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए। तो वी आर मूविंग द जॉइंट्स। उस हाथ को करिए जैसे मैं कर रहा हूं, पहले ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए। दैट वी आर डूइंग द फ्लेक्शन। This is also flexion, this is the extension, then fingers, flexion, extension, hyperextension. This is called hyperextension. Hyperextension means if it is increased more. So this is the flexion, this is the extension and hyperextension. So these are all the joints we have done. Now, you सामने आ जाओ। अच्छा बैठिए, हाँ पैर मोड़िए, एक पैर को मोड़िए, अच्छा लेटिए, हाँ एक पैर को मोड़िए घुटनों पे, अच्छे से मोड़ दीजिए, हाथ मत लगाइए, है ना, सीधे कर दीजिए, फिर मोड़िए दूसरा पैर। सो दिस इज द फ्लेक्शन, छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन, पैर की इस तरफ लगिए, एब्डक्शन, उधर लेके आइए, एडक्शन, उस पैर को उधर लेके आइए, एब्डक्शन, इधर लेके आइए, एडक्शन। अब उठ जाइए, मेरे तरफ देखिए, आपको ऐसे घुमाइए, दिस इज द सर्कमडक्शन। दूसरा हाथ करिए, ठीक है। So these are all the joints movement we are performing. What? To know the power of the muscle. What is the power? Whether the person can move the joints or not. ये हमें ऑब्जर्व करना है। We have to observe कि पर्सन इजीली मूवमेंट कर रहा है या नहीं। अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है दैट इज द प्रॉब्लम। हम इसका एक्सटेंशन फ्लेक्शन ये करा क्यों रहे हैं? देखने के लिए उसका कोई मूवमेंट में दिक्कत तो नहीं है। सुपाइनेशन जानते हो? सुपाइनेशन कैसे होता है? ऐसा, और प्रोनेशन ऐसा। तो इस तरफ और इस तरफ, दिस इज द सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हाथ ऐसे सीधे रखिए, ये दोनों फिंगर के अंदर में जो मसल्स होती है दैट इज द इंटरओसियस, हम उसका पावर को टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ये दो उंगली के बीच में एक कार्ड रखना है और आस्क द सब्जेक्ट टू होल्ड इट, और हमको क्या करना है, वी हैव टू रिमूव इट। इसको बोलेंगे खींच के रखिए, हम उसमें से निकाल लेंगे। कैसे करते देखिए, दोनों को पकड़िए, पकड़ के रखिए दोनों उंगली से, ठीक है, पकड़ा। अब मैं खींचूंगा लेकिन आप खींचने नहीं देना, ठीक है। सो जब ऐसा करते हैं तो वी फील ए पावर ऑफ रेजिस्टेंस। दैट रेजिस्टेंस इज टू बी ऑब्जर्व, इज टू बी नोटेड इन बोथ दी फिंगर्स। पहले इसमें किया, फिर हम इसमें करेंगे, खींच के रखिए। तो हमको कितना पावर फील हो रहा है इसके करीब। तो ये है इंट्रोसियस मसल्स का टेस्ट। आप लेट जाइए, बैटरी लो। यस। तो दिस इज द पावर ऑफ द मसल्स। देन चेस्ट या ट्रंक का जो पावर हमने आपको दिखाया कि
इसको बिना पूछे इसको उठना है, फिर पीछे पेट के बल पे लेके, पेट के बल पे लेके हाथ नीचे करिए। आप चेस्ट को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, हाँ गुड। सो दिस आर दी डिफरेंट टेस्ट ऑफ द पावर ऑफ द मसल। তাহলে हमने क्या क्या टेस्ट किया, अपर एक्सट्रीमिटी किया, लोअर एक्सट्रीमिटी किया, चेस्ट का किया, बैक का किया, बैक ऑफ द मसल्स। So this is the power of the muscle. Nutrition, approval करें। Nutrition के लिए what we have to do? We have to see whether there is a proper nutrition of the muscle. Proper nutrition of muscles के लिए muscles की जो गर्थ होता है, गर्थ माने इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, देख के। तुम छोड़ दो, तुम कुछ नहीं करो, हमको ऑब्जर्व करना है कि इसके जो गर्थ है, इसकी गर्थ एक है क्या। अगर इसमें कोई फर्क होता है दैट मीन्स नॉट एबनॉर्मल, मीन्स न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। सो न्यूट्रिशन इज टू बी एग्जामिन ऑन इंस्पेक्शन, देख के, और कुछ टच नहीं करना, देख के। नाउ टोन, टोन के लिए वी हैव टू फील द मसल। मतलब आप इसको फ्लेक्स करिए, जैसे वो फ्लेक्स किया मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, जैसे मैं एक्सटेंड करूंगा आप करते रहिए, जैसे मैं एक्सटेंड करूंगा ये मसल प्रोमिनेंट होता है, इस मसल को हम फील करेंगे, पैल्पेट करेंगे। दूसरा हाँ पैल्पेट करेंगे, तो इसमें से हमको टोन मालूम होता है। नॉर्मली दोनों में एक ही टोन होती है, एबनॉर्मली क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द टोन वी विल ऑब्जर्व। वन इज द इंक्रीज टोन, दैट इज द रिजिडिटी, डिक्रीज टोन, दैट इज द फ्लैक्सिडिटी, और कम हो जाता है तो हाइपोटोनिसिटी। और दूसरा चीज होता है रिजिडिटी, दो टाइप का होता है, एक है कॉग व्हील रिजिडिटी, अनदर इज द क्लैप्स नाइफ। क्लैप्स नाइफ मतलब आपने देखा होगा कि कैंची को दो जंग लग जाते तो उसको खींच के रखने में हमको दिक्कत होती है, जैसे क्लैप्स नाइफ रिजिडिटी होती है। ये सब एबनॉर्मल है जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये चार। नंबर 1 रिजिडिटी, नंबर 2 स्पेस्टिसिटी, नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी, and number 4 hypotonicity. These all four are abnormal. Rigidity means muscles become increased tone, muscle become hard. जैसे ये मसल्स को हम फील कर रहे हैं, ये हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, मसल्स हार्ड हो जाएगा। जैसे मैंने इसको बोला कि फ्लेक्स करिए, और फिर मैं इसको आराम, आप ताकत मत लगाना, मैं आपका इसको फ्लेक्स करूंगा, आप कुछ नहीं करिए, है ना। मैंने फ्लेक्स किया इजीली, आप इसको करिए, फिर मैंने फ्लेक्स किया इजीली, हम इसको इधर ले गया इजीली, हम ये हैंड को ऐसे ले गए इजीली। तो ये जो इजी मूवमेंट है जॉइंट के अंदर में, अगर इजीली मूवमेंट है दैट इज द नॉर्मल। अगर नहीं हो पाते हैं आपको ताकत लगाना पड़ेगा ये करने के लिए, क्यों, वहाँ का मसल्स रिजिड हो गया है, उस जॉइंट की मसल रिजिड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस, मसल में कड़कपन आ गया। स्पेस्टिसिटी में क्या होता है कि रिजिडिटी की थोड़ा सा बड़ी हुई रिजिडिटी, इंटेंस रिजिडिटी इज कॉल्ड द स्पेस्टिसिटी। इसमें हम तो ताकत लगा के कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तभी वो सब खुलेगा। जैसे इसने फ्लेक्स किया है, आप करने नहीं देना मुझे, है ना। जैसे मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, दैट इज द क्लैप्स नाइफ रिजिडिटी। इसमें क्या, इस मूवमेंट हम कर पाएंगे, यस कर तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा देर में कर पाएंगे, थोड़ा देर से, है ना, थोड़ा देर से कर पाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ द रिजिडिटी इज कॉल्ड द क्लैप्स नाइफ रिजिडिटी। उसका दूसरा नाम है, क्या बोला मैंने, स्पेस्टिसिटी।
तीसरा नाम है कि फ्लेक्सिडिटी, माने मसल नरम हो गया, मसल में कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है ऐसा नहीं। रिड्यूस टोन, अगर मसल की टोन में रिड्यूस्ड होती है दैट इज कॉल्ड दी स्पेस्टिसिटी। जैसे मसल पैरालिसिस हो गया तो आप हाथ को उठाएंगे, उठा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिसिटी, इसमें मसल की टोन कम हो जाती है लेकिन उसमें रिड्यूस होती है, इसमें बहुत कम हो जाता है, ये डिफरेंस है। इतना एबनॉर्मल में अपने को नहीं जाना है, हमको तो नॉर्मल में ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए हमको टोन, नॉर्मल टोन को हमने टेस्ट किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे इसको मैंने बोले कि फ्लेक्स करिए, फिर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, ताकत उसको बोलूँगा कि हमको करने नहीं देना। सो दिस इज कॉल्ड द टोन, वी हैव टू फील द टोन, वी हैव फील द रेजिस्टेंस। जैसे मैं इसको खींच के नीचे करने की कोशिश करूँगा, मेरे हाथ पे एक पावर, एक फीलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस एंड दैट इज द टोन। तो इसमें हमें कंपेयर करना है, इस हाथ में, इस हाथ में एक ही है, ऐसे हाथ में नहीं ले जाइए। मोड़िए इसको, हाँ मैं मोड़ने में दूंगा, आई विल एक्सटेंड, उसको मोड़े, मैं मोड़ने में दूंगा, आई विल एक्सटेंड, सो आई विल फील माय हैंड द टोन। सो दिस इज द टोन। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन माने हमने आपको पहले क्लास में बोला था, जनरल एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेशन, जैसे हम चलते हैं अपने आप हमारे दोनों हाथ से मूवमेंट होता है इन द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, नोज फिंगर टेस्ट। बैठिए, आपकी ये उंगली से, इसको उठाइए, ये उंगली से टिप ऑफ द नोज को टच करना है, आराम से, एकदम आराम से करिए। आंखें बंद करिए, उसको रखिए, अब आंखें बंद रखिए, उस हाथ से करिए, फिर रखिए, दूसरा हाथ से करिए। ये देखो, ये थोड़ा सा हड़बड़ा रहा है, माने ही कैन नॉट फिक्स। जैसे मैंने आंख खोल के करने बोला तो कर पा रहा है, लेट जाइए। दिस इज द नोज फिंगर टेस्ट। कोऑर्डिनेशन स्लाइटली डिफेक्ट है नर्वसनेस होने के कारण, है ना। हाथ रखिए, आंखें बंद रखिए। ये जो आपकी एरी है, हिल नी टेस्ट, हिल माने एरी, घुटना, ये एरी से ये घुटना को टच करना है, करेक्ट। आंखें बंद रखें, दूसरी पैर से करें, ठीक है। ये है हिल नी टेस्ट। नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। अब ये हिल से आपकी ये टो है ना, उसको टच करें, ऊपर 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 करिए, गुड। हाँ, दूसरा करिए, टो के ऊपर, ये एरी को टो के ऊपर रखना है। हाँ, दोबारा करिए, the heel toe test. These are all the nose finger test, heel knee test, heel toe test. उठ जाइए, खड़े हो जाइए, पैर को ऐसे मोड़िए, सीधे खड़े हो जाइए, आंखें बंद करिए। ऐसा पोजीशन में जैसे मैंने आंखें बंद करने बोला है, तो वो बराबर खड़ा है। अगर वो कोई तरफ से गिर जाएगा, that is called the Rombard sign positive. Rombard sign positive. नॉर्मली आदमी गिरता नहीं है, अगर कोई साइड में गिर गया तो that is the defect in the muscle coordination. बैठिए। Fibrillation and fasciculation, these are the two words we use in the muscle to identify what is the meaning of fibrillation and fasciculation. इसका अर्थ है क्विवरिंग, मसल में कंपन आना। जैसे एक कोई प्रोमिनेंट मसल्स को आप उंगली से टैप करें, अगर उसके अंदर में कंपन होता है
क्विवरिंग, दैट इज कॉल्ड द फिब्रिलेशन। दूसरे हाथ में हाथ रखो, ऐसे मारो, क्विवर अगर होता है, इट इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन लोअर मोटर न्यूरल रीजन। इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट मतलब अपने आप अपने शरीर के अंदर में कोई मसल की मूवमेंट हो रहा है, जैसे ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है कि कंपन। यूजुअली जब हम सोए हुए रहते हैं, ड्यूरिंग द स्लीप इट इज हैपन। व्हाट्स हैपन हियर, हाथ सीधे रखिए, हाँ, एक कागज की टुकड़ा दीजिए, वहां से बोलेंगे, हाथ रखिए सामने, हाथ की फिंगर को आउट स्ट्रेच कर दीजिए, आउट स्ट्रेच द फिंगर, ऊपर करिए, आंखें बंद रखिए। यू कैन सी इट्स लाइक ट्रेमर इज देयर। हाँ, इसका और अच्छा हुआ अगर हम ये पेपर में ध्यान रखिए, पेपर कांपेगा, पेपर उतना नहीं कांप रहा है, लेकिन हाथ तो कांप रहा है। सो दिस इज द ट्रेमर। आई डोंट नो, यू मे हैव सम नर्वसनेस एंड द ट्रेमर इज देयर। बैठो। दूसरा है, आपने देखा होगा किसी की कुछ स्पैज़म होता है, बैठा है उसका बाल नोच रहा है, या बैठे हैं तो पैर नचा रहा है। दीज आर दी कॉल्ड द टिक्स, हैबिट्स। एक आदत बन गई है जिसके कारण उसको वो किसी के बाल खींचने का, अपने पैर को नचाने का, ये नॉर्मली होता है जब वो आदमी एवेक है, माने जागृत अवस्था में, लेटे हुए नहीं होगा, सो गया नहीं होगा। दूसरा मूवमेंट एक होता है कि कोरिक मूवमेंट, उसमें जर्किंग मूवमेंट होता है और नेक के अंदर में होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है, रिदमिकल, नॉन रिदमिकल, पर्पसलेस, नॉट रिदमिकल, पर्पसलेस जर्किंग, एंड उसके साथ में मुंह में थोड़ा सा कैरिकेचर बनेंगे, जैसे जुगाड़ करता है, हंसाता है। तो फॉलो मी कैसे होता है, रिदमिकल, so this is the कोरिया, CHOREA, कोरिक मूवमेंट। ये ब्रेन में कुछ पोर्शंस होता है जिसमें पैरालिसिस का कारण होता है। और होता है एथेटोसिस। एथेटोसिस में स्लो मूवमेंट होगा, फिंगर में देखिए हमको स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, फिर एक्सटेंशन हो रहा है, फिंगर आउट स्ट्रेच हो गया है, हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, उसके बाद में हाथ में प्रोनेशन हो रहा है, फिर सुपरनेशन हो रहा है। ये अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, उसको कंट्रोल करने बोलो नहीं होगा। तो इस टाइप का मूवमेंट एबनॉर्मल होता है, दैट इज द एथेटोसिस। So these are all about the clinical examination of motor function and stop.